कर लेते हैं छोटा सा। अब यहाँ पे देखो, this is the analytical solution of LCR series circuit. See, in this LCR series circuit, here L, C and R, all these three are in series. It is connected with the AC source. And if we write the equation of this LCR series circuit, then it will be L di by dt plus IR plus Q upon C is equal to Vm sin omega t. And here I is equal to dq by dt, and di by dt is what? D square q upon dt square. Now obviously if I substitute this two value, means ये I equal to यहाँ पे substitute कर देते हैं और di by dt हम यहाँ पे substitute करेंगे, then we will get this equation L d square q by dt square plus dq by dt into R plus q by c is equal to Vm sin omega t. So this is the second order differential equation of LCR series circuit. And now what happened? So let us assume that for this equation, solution of this differential equation in terms of Q, electric charge. So it will be Q is equal to Qm sin omega t plus phi. And if I take the differentiation with respect to time t, so dq by dt is equal to Qm cos omega t plus phi. And now there is a differentiation of omega t plus phi. So that is d by dt of omega t plus phi. पहले हमने साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, and then we differentiate the angle. पहले हमने साइन फंक्शन का किया, बाद में हम एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे. Okay, that is Qm cos omega t plus phi, and d by dt of omega t plus phi. So it will be omega because phi is constant, it is phase. तो constant का differentiation क्या होगा? 0 होगा. And d by dt, that is of omega t, that is omega. Okay, so this is the initial steps. और actually यहाँ तक अगर आप देखो तो it is same for the phasor diagram solution or for this equation. So it is almost similar, but अब थोड़ा सा change आएगा इसमें derivation में. Okay. So now Q is equal to Qm sin omega t plus phi. First differentiation will be dq by dt is equal to Qm omega cos omega t plus phi. And second time differentiation, it will be d square q by dt square is equal to minus Qm omega square sin omega t plus phi. And if we now substitute this value, means second, third and fourth, means values of second, third and fourth equation into the first equation. First equation हमारे पास है, it is the second order differential equation of the LCR series circuit. So L d square q by dt square plus I dq by dt and q by c is equal to Vm sin omega t plus phi. अब देखो ये तीनों का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं. Ready? See, here we substitute the magnitude of d square q by dt square. R into dq by dt, so we substitute the magnitude of dq by dt. Then we substitute the magnitude of q, Vm sin omega t as it is. See, the magnitude of d square q by dt square is minus Qm omega square sin omega t plus phi plus R into Qm omega cos omega t plus phi plus 1 upon c, and q is what? So it is Qm sin omega t plus phi. And उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे Qm omega कॉमन निकाल लिया है. Here Qm omega is common, then here it will be minus omega sin omega t plus phi. Qm omega common, so it is R cos omega t plus phi. And here Qm omega common, so 1 upon omega c sin omega t plus phi. So it is Vm sin omega t. Okay. Now what happened? So see, in this equation, here Qm omega is common. Now we will arrange this equation. And first of all, we write the term of resistance R cos omega t plus phi. Then we will write this of capacitance 1 upon omega c
साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एंड देन ये लिखेंगे माइनस ओमेगा एल साइन ओमेगा टी प्लस फाइव विच इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। आप लोगों ने एक बात ऑब्जर्व की, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों में से देखो आप लोग साइन कॉमन निकाल सकते हैं, हम यहां से साइन कॉमन निकाल सकते हैं एंड सी इफ वी टेक साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एज ए कॉमन टर्म then we will get qm omega r cos ओमेगा टी प्लस फाइव। कॉमन क्या निकलेगा यहाँ पे, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल इंटू ब्रैकेट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव विच इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब सी here as we know 1 upon omega c is what, xc, तो qm ओमेगा r cos ओमेगा t प्लस फाइव प्लस इसको हम क्या बोलेंगे xc माइनस xl, बिकॉज xc मीन्स व्हाट 1 अपॉन ओमेगा c माइनस xl इट मीन्स ओमेगा l, तो हमने यहाँ पे उसका वैल्यू लिख दिया है साइन ओमेगा t प्लस फाइव विच इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। तो देखो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया है, राइट। हियर qm ओमेगा इज कॉमन, r cos ओमेगा t प्लस फाइव कॉमन इज साइन ओमेगा t प्लस फाइव, तो साइन ओमेगा t प्लस फाइव कॉमन 1 अपॉन ओमेगा c माइनस ओमेगा l, then it will be xc minus xl sin omega t plus 5. Okay, because xc is capacitive reactance 1 upon omega c and xl is inductive reactance. Okay, तो चलो यहाँ तक तो हो गया, डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ। चलो अब यहाँ पे देखो qm into bracket r cos omega t plus 5 plus xc minus xl sin omega t plus 5 ब्रैकेट कंप्लीट Vm sin ओमेगा टी। यहां पे अगर हम ऐसा कर दे कि मल्टीप्लाइंग बाय z अपॉन z ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, right, multiplying by z upon z on left hand side of the equation. So qm omega r cos omega t plus 5 plus xc minus xl sin omega t plus 5. अच्छा, अब यहाँ पे देखो multiplying by z upon z on left hand side of the equation. So obviously it will be like this, qm ओमेगा z, qm ओमेगा z, और z जो है डिवाइड में जो z है उसको अंदर ले जाते हैं, तो इट विल बी r अपॉन z cos ओमेगा t प्लस 5 cos ओमेगा t प्लस 5 प्लस xc माइनस xl अपॉन z sin omega t plus 5 which is equal to Vm sin omega t. तो see qm omega z r by z cos omega t plus 5 plus xc minus xl। अच्छा, अभी हम यहाँ पे देखो इसको जैसे हमने पहले लिया था, शायद पहले वाला इक्वेशन आपको याद होगा, उसमें आप थोड़ा सा याद करो तो हमने tan थीटा फाइंड आउट किया था, शायद tan थीटा आपको याद होगा। तो देखो तो tan थीटा हमने ऐसा कुछ लिखा था कि tan थीटा इज इक्वल टू, इम्पेडेंस के वक्त हमने ऐसा लिखा था tan थीटा इज इक्वल टू xc माइनस xl अपॉन r, xc माइनस xl अपॉन r, ये वाला इक्वेशन हमने लिखा था। यस,
अमित, राइट। तो क्यू एम ओमेगा जेड, क्यू एम ओमेगा जेड, देखो तो मैं आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना, इसी इक्वेशन से tan थीटा इज इक्वल टू xc माइनस xl अपॉन r, इसी इक्वेशन से हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज cos थीटा इनटू cos ओमेगा t प्लस फाइव। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। और आप लोग जानते हो कि यहाँ पे z जो है वो क्या है, z एक्चुअली हाइपोटेनस पे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xc माइनस xl होल स्क्वायर। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है और कुछ नहीं है। तो cos थीटा इज इक्वल टू r बाई z, वो शायद मैंने कल डायग्राम भी ड्रॉ किया था, ऐसा डायग्राम था, आपको याद भी होगा। यहाँ पे z था, यहाँ पे थीटा, और ये वाला हमारा r है, और ये हमारा xc माइनस xl है, ये हमारा xc माइनस xl है। तो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ये रहा यहाँ, प्लस साइन थीटा, साइन थीटा, ये साइन थीटा होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यस और नो, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इट इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, विच इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा। नाउ व्हाट हैपन, देखो तो ये कुछ इक्वेशन दिख रहा है आपको, cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस sin अल्फा इंटू sin बीटा, ऐसा कुछ है यहाँ, ऐसा ही कुछ है ना, cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस sin अल्फा इंटू sin बीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, आपको पता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी है यहाँ पे, तो cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस sin अल्फा इंटू sin बीटा, बताओ क्या होगा, cos अल्फा माइनस बीटा, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, cos अल्फा माइनस बीटा, बहुत अच्छी बात है। क्यू एम ओमेगा जेड cos अल्फा माइनस बीटा, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखना अब इसको, यहाँ पे देखो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू, बिकॉज इट इज cos फाइव रेडी, यहाँ पे क्या बन रहा है, cos पाई इंटू cos ओमेगा टी प्लस फाइव, एंड यस यहाँ पे कुछ बाकी रह गया, माइनस साइन बाकी रह, चलो अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखें कि cos थीटा माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, देखो तो ये वाला इक्वेशन समझ में आ रहा है, ये वाला इक्वेशन समझ में आया कैसे हुआ, cos थीटा माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस sin अल्फा इंटू sin बीटा। अच्छा, आप लोग जानते हो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और क्यू एम ओमेगा जेड cos, देखो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस थीटा इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, यस और नो, ऐसा भी तो लिख सकते थे हम, cos ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस थीटा। उसका रीजन क्या है बताओ, उसका रीजन क्या है, क्या रीजन हो सकता है, यस यस यस, वेरी गुड लक्ष्य लक्ष्य, cos ऑफ माइनस थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos इज ए इवन फंक्शन, ये आपको पता है, cos इज इवन फंक्शन, वाह अनन्या, वेरी गुड, तो cos इज इवन फंक्शन, ये आपको पता है। तो cos ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस थीटा, भाई उत्कर्ष कौन कौन आज आया है और कौन कौन नहीं है, कुछ पता चला? पाउलिन को बुला लो नहीं यार, पाउलिन हर बार ऐसा करती है, ये सुबह सुबह आती नहीं है, पाउलिन को कॉल करो।
ओके, चलो आगे जाते हैं। अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को। क्यू एम ओमेगा जेड कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस थीटा इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो हमारे पास ये इक्वेशन है और क्यू एम आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, इसके बाद हम आगे जाते हैं। सो बाय टेकिंग फाइव माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू in this equation. So obviously in this equation QMZ cos omega t minus pi by 2 is equal to Vm sin omega t। देखो यहाँ QM omega Z cos omega t minus pi by 2 is equal to Vm sin omega t। ओके, तो देखो हम यहाँ से डायरेक्टली ये पता चल गया, अगर हम साइन ये कंपेयर करेंगे यहाँ तो साइन ओमेगा टी आ जाएगा। देखो और वहां से हमें कुछ एक बात ये भी मिली कि देखो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, साइन ओमेगा टी ये कैंसिल हो गया। क्या ये बात समझ में आई आपको? कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू एंड दिस साइन ओमेगा टी, तो हमें ये क्या मिलेगा अभी, क्यू एम ओमेगा जेड is equal to Vm। QM omega Z is equal to Vm। अच्छा, तो यहाँ से एक बात हमें ये पता चली, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, इसको हम किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर विथ Vm is equal to IMZ। Vm is equal to IMZ, उसके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, आपको IM मिलेगा। देखो तो IM मिल रहा है आपको, अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो IM मिल रहा है हमें, यस IM मिल जाएगा हमें। IM का मतलब क्या है भाई, IM का मतलब क्या है, करंट एम्पलीट्यूड। सो मैक्सिमम करंट इज गिवन बाय IM इज इक्वल टू QM ओमेगा। IM is equal to QM ओमेगा। भाई उत्कर्ष है यहाँ पे, अमित, शिवम गरास्य है यहाँ पे, यस, लक्षित, हाँ ये इक्वेशन कहीं पे दिख रहा है आपको, ये 11th में कहीं पे था, इसके आसपास देखो तो कुछ था, इसके जैसा कुछ था 11th में, ये कहीं पे था, ये नहीं था लेकिन इसके जैसा कुछ और था, क्या था, चलो एक तो आंसर आया, देखो तो इसको ध्यान से देखो, ये कहीं पे दिख रहा था आपको 11th में, तो देखो ऐसा होगा यहाँ पे IM इज इक्वल टू QM ओमेगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हमने देखा था, V मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू A इंटू ओमेगा। Here displacement, maximum displacement, here charge, here omega, here angular speed, यहाँ पे angular frequency, यहाँ पे भी angular frequency, यहाँ पे angular speed, यहाँ पे linear speed, R is the radius and IM is what, तो it is maximum current, here maximum velocity। देखो इसको थोड़ा सा हम ऐसे भी आप कोरिलेट कर सकते हो, कैसे, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो, तो IM एक्चुअली क्या है, तो dq by dt है एंड दिस इज QM ओमेगा। देखो और यहाँ पे वेलोसिटी देखो आप, dx by dt इज इक्वल टू और dr by dt, तो आपको इजीली याद रहेगा। चलो देखो, यस मैक्सिमम करंट हमें मिल गया है, IM मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू दिस QM ओमेगा। इक्वेशन नंबर आई थिंक आएगा 6। तो IM इज इक्वल टू QM ओमेगा। ओके, एक्चुअली हम ये
वहां पे भी बता सकते थे। देखो आज हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट इक्वेशन मीन्स जो लिखा था, तो नाउ q इज इक्वल टू qm sin ओमेगा t। सी हमने ये इनिशियली बताया था आज स्टार्टिंग में कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ LCR सीरीज सर्किट। देन व्हाट हैपन, ऑब्वियसली इफ वी डिफरेंशिएट दिस with respect to time t, obviously we will get the instantaneous current and here this will be qm omega cos omega t plus phi। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं I am q omega, तो it will be this I is equal to I am cos omega t plus phi, मैक्सिमम करंट। ये इक्वेशन आ गया, देखो ये करंट का इक्वेशन आ गया और ये करंट का इक्वेशन जो है रेडी बहुत सिंपल है, I इज इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। और एक्चुअली ये क्या दिखाता है, तो देखो हमें इक्वेशन तो पता है और इस इक्वेशन में हमने आई थिंक आपको याद भी होगा कि हमने क्या लिखा था, वो इक्वेशन इसके पहले वाले इक्वेशन में हमने क्या लिखा था कि फाइव माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, ऐसा हमने लिखा था ना, बाई टेकिंग फाइव माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। तो वो जो इक्वेशन है आपको पता होगा, हियर फाइव माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। सो ऑब्वियसली फाइव इज इक्वल टू, देखो तो थीटा माइनस पाई बाई टू होगा, थीटा माइनस पाई बाई टू, थीटा माइनस पाई बाई टू। अब इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, अगर हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बोलो तो इक्वेशन कैसा बनेगा, I इज इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस पाई बाई टू। क्या इसको हम साइन लिख सकते हैं, इसको साइन लिख सकते हैं ना, इसको साइन के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम साइन के टर्म्स में लिख सकते हैं। अगर हम इसको साइन के टर्म्स में लिखेंगे तो देखो तो ऐसा कुछ बन जाएगा, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यस और नो, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। समझ में आया ये कैसे हुआ, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, अब ये हो गया एंड हमें पता है वेर आई एम इज इक्वल टू व्हाट, तो आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई जेड, वेर आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई जेड, वेर जेड इज व्हाट इम्पेडेंस, तो वी एम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर, इट इज द इम्पेडेंस। तो आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर एंड ऑब्वियसली टेन, यहाँ पे टेन थीटा क्या होगा वो भी तो हमें देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे टेन थीटा होगा एक्स सी माइनस एक्स एल बाई आर, टेन थीटा विल बी एक्स सी माइनस एक्स एल बाई आर। सो आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो इट इज सिमिलर सॉल्यूशन एज इन फेजर डायग्राम सॉल्यूशन, so this is analytical solution and almost a similar solution in this analytical solution.